आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। चेन्नई शहर में अमीर खुसरो संगीत अकेडमी की जानिब से शाम मौसीकी नामी एक बेहतरीन और शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जी नाजरीन, 5 जुलाई 2023 चाहशुम्बे के दिन 44 हार्लेस रोड, किलपॉक, चेन्नई शहर में वाक़े द हार्लेस हाउस में अमीर खुसरो अकेडमी की जानिब से एक शानदार प्रोग्राम बनाम शाम मौसीकी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। इस प्रोग्राम में गेस्ट ऑफ ऑनर खास मेहमान की हैसियत से यूएस कंसोल जनरल जूडिथ रावी ने शिरकत फरमाई। और नाजरीन, एक खास बात, इस प्रोग्राम ने बेंगलोर के मशहूर और मारूफ ज़बरदस्त तबला नवाज जनाब मोहम्मद हनीफ साहब को सज्जाद बुखारी मेमोरियल अवार्ड 2023 से नवाजा गया और साथ ही बेहतरीन बैंजो मास्टर श्री कलेशा को कैश अवार्ड दिया गया। आइए देखते और जानते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। So shall we begin, Judith? It's such a delight to see you here. It's such a big honor. I'm so honored and personally grateful to you for having accepted my invitation. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. We are indeed honored to have U.S. Consul General Judith Ravin with us. Would like to welcome her with. Farida is an amazing person, very warm, and we depend upon her a lot for her warmth and hospitality. Just to say a few words about Amir Khusro Sangeet Academy, we began in 2002 and we had three aims, which prompted us to start this academy. One was to start Hindustani classical concerts. Way back in 2002, there were not many sabhas which would present artists from the north, and also the related genres like Kathak and Qawwali, etc. The other thing was we wanted to provide financial support to the artists who couldn't fend for themselves at a particular stage in their life, and also, present awards, lifetime achievement or any exceptional artist award, young artist award to people who deserved for their distinguished selfless service. And to that effect, we had people like Dr. Cherian, A.R. Rahman, M.S. Vishwanathan, Pakistani singer Shafqat Ali Khan, and many an artist who actually had the occasion of receiving that from here. And that's how it went on, and it's 2023. We can look back gratefully for having provided a platform to the seasoned artists and so also people who were just beginning to explore singing on the stage, the young people who wanted a platform. So it's indeed a pleasure, and today we'll be presenting an award to one of the persons who deserves it very much. We had a member of our academy, Professor Sajjad Bukhari. Sadly, he passed away, and his son has been very kind to institute an award in his name annually. So this award this year goes to Muhammad Hanif, who is in Bangalore. Tabla Nawaz Muhammad Hanif. He's a great performer and he had very good innings. Sadly, he's not keeping so well. So I request Judith, would you like to just give this award? Are you receiving on his behalf? This is going virtually today. Sajjad Bukhari Award goes to Muhammad Hanif. Tabla Nawaz Muhammad Hanif. Yes,
We'll be sending it to him. He is not in a position to travel. This also carries a cash award. And Suhail Bhai, who's come all the way from Bangalore, will be taking it with him. Thank you. बोलो अली भाई बोलो. हाँ, अवार्ड दिया गया आपको. शुक्रिया अदा कर रहे हो. हाँ, यहाँ सबकी दुआ आपके हक में है. अल्लाह ताला तुम्हें जल्दी तंदुरुस्ती अता फरमाए. मोहम्मद हनीफ साहब तक पहुंचाने के लिए सुहेल भाई के हवाले कर रहे हैं. हमारी खुशकिस्मती है कि सुहेल भाई आ गए. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत उनका हमारी शुभकामनाओं के साथ. He is also a well-wisher of Amir Khusro संगीत अकेडमी. We thank you सुहेल भाई. शुक्रिया. आपको तो आते हैं ना, इस जीवन में आपको आना है बार बार. जी जरूर जरूर. ये जिम्मेदारी मुझे दिए थे जी, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ. शुक्रिया, मेहरबानी जी. The person who's deserving of some funds, and it's one Mr. Kalesh Shah. He plays the banjo. So, oh, I see. May I have? You are the grandson. All the time performing in Dubai and Malaysia and whatnot. Maula Hussain on dholak, Mubarak Hussain on banjo, and Qadir Hussain on tabla. And of course, Munna Shaukat Ali, Ustad Munna Shaukat Ali. He's a lyricist, composer, and of course a great Qawwali singer. And a poet, yes. I said lyricist, yes, a great poet. And so Munnaji, it's your evening. We can just begin with whatever you like. And he's the one who heads the Qawwali at the KM Music Conservatory. So what you heard was his making and his, composition the other day. सब तेरा करम सुभान अल्लाह, तेरी शान निराली या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह. सब तेरा करम सुभान अल्लाह, सब तेरा करम सुभान अल्लाह, तेरी शान निराली है अल्लाह, तेरी शान निराली है अल्लाह. झुकते हैं लोग काबे अतहर के सामने, झुकते हैं लोग काबे अतहर के सामने, झुकते हैं लोग काबे अतहर के सामने. काबा झुका हुआ है, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में. आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो. ओ यूं ही पहलू में बैठे रहो. आज जाने की जिद ना करो, ओ आज जाने की जिद ना करो. मोहम्मद हनीफ अशरफी जो बेंगलोर में रहते हैं, तो उन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है. मैं आज इस मौके पर हज़रत हमारी सज्जाद बुखारी साहब की गज़ल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ. समात फरमाएं. खुद को पहचान कर खुदा तक जा, इस करीने इस करीने इस करीने से इंतहा, इस करीने से इंतहा तक जा. Small halls like this. Well, I must say that this particular space, which is very small rather,
It's because of my son-in-law's great-grandfather, who was the Sheriff of Madras 3 times over. So the auntie upstairs, his grandmother, has been kind enough to let us use the space. And it's really, I'm so overwhelmed by your lovely words and your being here with us. मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। इसलिए हैं आप विलायत के सरदार अली मौला, हैं आप विलायत के सरदार अली मौला, हैं आप विलायत के सरदार अली मौला, हैं आप विलायत के सरदार अली मौला। बतुफैल दामन मुर्तज़ा तुझे क्या बताऊं मुझे क्या मिला, तुझ बतुफैल दामन मुर्तज़ा तुझे क्या बताऊं मुझे क्या मिला। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। There is a connection between the three. अच्छा चलो क्या है? जब चांदनी रातों में तूने खुद हमसे किया इकरार वफा, खुद
हमसे किया इकरार वफा, फिर पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। ओ समंदर के धनी बाबा हाजी अली, आलम मस्ती का तौहीद परस्ती का है, आलम मस्ती का तौहीद परस्ती का, लबरेज तू कर दे जाम, दे आज खुदा के नाम नाम, आज खुदा के नाम नाम, दे आज खुदा के नाम नाम, दे आज खुदा के नाम नाम, दे आज खुदा के नाम नाम, है आलम मस्ती का तौहीद परस्ती का, है आलम मस्ती का तौहीद परस्ती का, लबरेज तू कर दे जाम, दे आज खुदा के नाम नाम, दम आज खुदा के नाम नाम, दम मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। ये जामे इल्लल्लाह पीयूं पढ़ कर बिस्मिल्लाह, ये जामे इल्लल्लाह पढ़ कर बिस्मिल्लाह। मकसद तो सिर्फ ये था, पहला वो जो है वो मेरे उस्ताद भाई हैं, हम दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द में रहे हैं, और मेरा बचपना उनका बचपना एक साथ जो है, ब्रॉडवे रोड पर रावे की बौड़ी जो है, बौड़ी के बाजू में कमरा था, जो हनीफ के वालिद बाबजी साहब के नाम से बड़े मशहूर, वो भी गाते थे, कव्वाली से बड़ा उनको संगीत से लगाव था, और ख़ासकर उनके कमरे में जो है हम लोग सुबह से शाम तक, मुझे कमरा दे दिया था उन्हें हनीफ के वालिद ने, मैं उसी कमरे में रहता था। मेरा बचपना हनीफ के साथ में, हनीफ में से 1-2-3 साल के छोटे हैं, और कर्नाटक में जो है बहुत ही जल्द उन्होंने इतना नाम कमाया, इतना उस्ताद की दुआ से इतना फ़न उनको हासिल था कि कव्वाली की दुनिया में जो है सबसे बम्बई से आने वाले जितने भी कव्वाल बेंगलोर में आते थे, तो सबसे पहले वो हनीफ को ही तबले पर जो है वो पसंद फरमाते थे, और वो मुतालबा करते थे हनीफ हमारे साथ में तबला बजाए। तो मैं उनकी तारीफ़ जितनी भी करूं कम है, क्योंकि मुझे उनकी एक एक बात याद आती है हनीफ की। अब ये आज उनकी ही याद में ये महफ़िल मुनक़िद की गई थी, ताकि इसलिए कि जितने भी सुनने वाले हैं उनकी दुआ ही उनकी हर मरज़ का इलाज बन सके। मैं तो ज़्यादा उनके मरज़ के बारे में बोल नहीं सकता, सिर्फ़ मेरी ज़ुबान पर उनके लिए दुआ है। वो मेरे बचपन के बहुत ही जिगरी मेरे जो है दोस्त क्या मेरे भाई की माँ के पेट से जो पैदा होते हैं, इस तरह हकीकी मेरे भाइयों से ज़्यादा मेरे भाई हैं, और दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। मोहम्मद हनीफ। संगीत अकादमी की जानिब से जो है अक्सर ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो आज कुछ हटके प्रोग्राम हुआ है किसी के, जो बेंगलोर में जो एक तबला मास्टर रहते हैं हनीफ साहब, उनके ताल्लुक से जो है आज प्रोग्राम रखा गया। तो क्या मकसद था? हम चाहते थे जी कि हमारी अमीर खुसरो संगीत अकादमी का एक ये ज़रूरी पैगाम पहुँचे। असल में अमीर खुसरो संगीत अकादमी के 3 मेन मकसद हैं। एक तो हिंदुस्तानी क्लासिकल को पेश करना, और जो आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट अपने लिए जिनको कुछ हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो हम यहाँ देने की कोशिश करते हैं। तो मोहम्मद हनीफ बहुत ही उनका ताल्लुक़ है मुन्ना जी से बचपन से, तो उन्होंने इनफैक्ट अमीर खुसरो संगीत अकादमी के लिए 2002 में मुन्ना जी के साथ जो इनका फ़र्स्ट प्रोग्राम था हमारी अकादमी को शुरू करने के बाद, उन्होंने आके बजाया भी था तबला इनके साथ। तो बस हम चाहते थे कि उनको सबकी दुआ मिले और हम जो भी उनको सपोर्ट दे सकें फिनेंशियली, तो हमने इसलिए चैरिटी शो रखा था। सो हमने टिकट तो नहीं रखी, इतना छोटा सा कमरा है जो कि इसमें कि कोई आता है नहीं आता, पर हम चाहते थे कि लोग महसूस करें कि किसी के लिए कुछ फ़ंड अगर इकट्ठा हो सकता है, तो उसकी हमने कोशिश की थी। और वैसे हमने गज़ल का मौका, गज़ल
सोचा कि गज़ल की शाम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे चाहने वाले सब गज़ल सुनना पसंद करते हैं। और फिर जो यूएस कौंसल जनरल हैं वो एक्चुअली मद्रास को छोड़ के जा रही हैं, वो हमारी ख़ास दोस्त हैं, तो हमने सोचा कि वो भी खुश होंगी, उनको उर्दू से दिलचस्पी है, इसलिए हमने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। से चीफ़ गेस्ट, हर कोई हमारे लिए चीफ़ गेस्ट ही होता है। जितने भी यहाँ पर जमा हुए थे आज, उनमें जितने भी शोरा मौजूद थे, जितने भी सामीन मौजूद थे, हर कोई अपने आप एक क्या बोले हैं उसको, एवरीवन इज़ एकेडमी, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। एक फ़र्द का आना भी हमारे लिए एक अंजुमन का आना समझते हैं। यहाँ जितने भी आए थे, दे हैव एन्जॉयड द प्रोग्राम। आज की जो चीफ़ गेस्ट थी जुडिथ रवीन, एक ऐसी मोहतरमा जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि अमीर खुसरो संगीत एकेडमी जो काम कर रही है 2002 से, इसमें सिर्फ मौसीक़ी नहीं है, जैसा पहले भी मैं कह चुका हूँ, हज़रत अमीर खुसरो सिर्फ शायरी से जुड़े हुए नहीं हैं, म्यूज़िक से भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ शेर और म्यूज़िक का जो संगम होता है, उसी का नाम जो है अमीर खुसरो संगीत एकेडमी है। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। हम शुक्रिया भी अदा करते हैं जुडिथ रवीन साहबा का, जिन्होंने बहुत सारा वक्त दिया। हालांकि इतने बड़े प्रोफाइल में आप हैं, इतना बड़ा स्टेटस है, फिर भी आपने हमारे लिए तकरीबन 2.5-3 घंटे हमारे लिए जो मुख्तस करके यहाँ पर शरीक रहीं, जिसमें हमारे अज़ीज़ुश्शोरा हसन फ़ैयाज़ साहब भी बिलखुसूस तबीयत की, सेहत की नासाजगी के अलावा यहाँ जो मौजूद हुए, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। फ़र्दन जो लोग बहुत दूर दूर से आए, अपनी मसरूफ़ियात को छोड़ कर आए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ बसाथ बेंगलुरु से जो तशरीफ़ लाए हैं आप, सुहेल साहब, न्यूज़ 16 जिसे कहा जाए, ये एक ऐसा चैनल है जो और फ्लरिश हो रहा है, बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। इसमें जो है हम इनके लिए भी मुबारकबाद देते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि जो अवार्ड दिया गया है मोहम्मद हनीफ़ साहब को, वो आपके हवाले करेंगे। आप कल या परसों जब भी मौका मिले उन तक पहुंचाएं और उसकी वीडियो भी हम तक पहुंचाएं। शुक्रिया। और आपकी चैनल का हम संगीत अकादमी के अमीर खुसरो संगीत अकादमी जानिब से ही शुक्रिया अदा करते हैं। आप वही तो तो मेरी जिम्मेदारी मैं यहाँ तक पहुँचाया, तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे मुन्ना शौकत और जो है ज्योति हबीबा के लिए? उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा इतना ख्याल किए हमारे। उनका मुन्ना शौकत जो उनका पूरा नाम मेरा नाम है। अच्छा। उनका भी नाम मोहम्मद हनीफ़ है जी, मेरा भी नाम मोहम्मद हनीफ़ है। उनका जो है वो शायरी की वजह से वो तखल्लुस जो है वो शौकत रख लिए। अच्छा। तो शौकत के नाम से फेमस हो गए वो। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। और हमारे उम्मे हबीबा का भी पहले बहुत दिन पहले मैं मिला था उनसे, जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। अच्छा। बस आप लोगों की दुआएं हैं, इतना ख्याल किए दोनों, हमारे बेंगलुरु में रहने के बावजूद उतनी दूर से मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। तो वहाँ पे जो है आपकी जानिब से एक प्रोग्राम मुकर्रर किया गया था जी, शाम मौसीक़ी बोलकर। जी। अब ख़ुद मुन्ना शौकत ने आपसे वीडियो कॉल पे बात की, बात करने के बाद जो है आंखों से आंसू निकले थे, उनका बचपना याद कर रहे थे, तो आप कुछ बचपने के बारे में बताएंगे? बचपन में ऐसा हुआ, मैं तकरीबन 10-11 साल का था। वो हमारे वालदा जो है स्कूल की तरफ बहुत ये करते थे। वो हमारे वालिद साहब भी जो है ज़रा गाते भी थे और तबला भी बजाते थे। जी। वो इत्तेफाक से क्या हुआ बोले तो वो दूसरे आदमी को सिखाते थे तबला, मैं जल्दी कैच कर लेता था। तो मैं स्कूल की वजह कमरे में जाके हमारे वालिद साहब के चाबी अंकल से मार के थोड़े तबले की प्रैक्टिस करता था। ऐसे फिर वो तबला ज़रा रनिंग में आ गया। उसके बाद हमारे वालिद साहब को मालूम हो गया। फिर हमारे उस्ताद बाकी साहब, आप नाम सुने होंगे जी, हमारे बेंगलुरु की बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है। शायद मेरे ख्याल से हमारे साउथ में इतने बड़े आर्टिस्ट कोई नहीं गुजरे। हमारा वो बचपन था, हम लोग उनको ज़्यादा समझ नहीं सके। वो असल में मुझे गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मेरे तबले को देखकर हमारे वालिद साहब उनके इंशारे में उनसे शागिर्द बना दिए। अच्छा। तो मैं थोड़ा बहुत गाना शुरू किया था जी। तो मुझे फर्स्ट में यमन दिया वो राग। अच्छा। वो भी विलम्पत बोल के ठेका आता है जी। 16 मात्रे का,
वो दिए तो मैं थोड़ा थोड़ा ख्याल हो गया, मगर मेरी आवाज़ इतनी खूबसूरत नहीं थी। अच्छा तबला थोड़ा थोड़ा बजाता था मैं। इतने में हमारे शौकत अली जो है जी ये दाखिल हो गए, और इनकी आवाज़ जो है बहुत ऊंची आवाज़, जी। और ये पहले से थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाते थे। अच्छा तो हमारे उस्ताद की तवज्जो उनकी भी तरफ हो गई, मैं तबले की तरफ हो गया। अच्छा अब वो फिर उस्ताद को हमारे 9 साजों के माहिर थे जी। वो नए नए टुकड़े उनके साथ में कैसा बजाना है, अब वो ज़रा ज़िद्दा ज़िद्दी का मामला आ गया तो आप में और मुन्ना भाई में? जी। अच्छा मजरा जलसी हो गया समझ लीजिए। अच्छा वो आप गाने बजाने को छोड़ के मुझे तबले वाला बना दिया ना बोल के। जी। वो खैर इत्तेफाक की बात, मैं थोड़ा गाना भी करता था, मगर वो तबले में जब वो हमारे उस्ताद बाकी साहब हजरत जो मुन्ना को सिखाते थे ना, वो देख के फिर मुझे भी कुछ टुकड़े खरीदे देते थे वो, मैं और जल्दी उसको करके सुनाता, चाहे मुन्ना से पहले। अच्छा वो क्या होगा बोले तो तबले की तरफ ही मेरी तवज्जो हो गई। जी। ऐसे ही चलता रहा। बस फिर आपस में हमारे लोगों के बहुत दोस्ती हो, मेरे से क्या है 2 साल के बड़े होंगे। जी। फिर प्रोग्रामों का वो मसला शुरू हो गया। अल्लाह के करम से मैं कव्वाली में बजाया, गज़ल में भी हमारे बेंगलोर के हरिकिशन पावे जी। बादशाह भाई और अकबर यूसुफी ऐसे बड़े गज़ल में भी, सितार के भी कुछ बजाए। हमारे उस्ताद की बहुत बढ़िया करम क्या है, थोड़ा बहुत जो क्लासिकल हमको जो सिखाए वो बचपन में हम लोग कदर नहीं किए, बाद में उनके जाने के बाद मालूम हुआ कि क्या चीज़ थी बोल के। अच्छा वो हमें कब काम आई बोले तो जब सितार के साथ बजाना पड़ा, क्योंकि सितार के साथ बजाना एक अलग ही काम होता है जी। और गज़ल के साथ भी बजाना एक अलग है। ख़वाली में ज़रा उठापटक का मामला होता है, जी। धूम धड़ाके का काम। तो उसमें एक ऐसी नॉलेज हुई भजन का, ख़वाली का, गज़ल का, सितार का। उसमें थोड़ी बहुत फिर वो हजरत की किताबें लेकर जो लिख के दिए थे वो टुकड़े क़ायदे, जी। वो मैं फिर रियाज करना शुरू किया। अब वो इत्तेफाक से बुद्धा साहब जो उधर चले गए अच्छा और मैं इसी में बस हो गया। वो कुछ यादें आपके और मुन्ना भाई के हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे तो? बस क्या है, हमारे उस्ताद ढूंढ के हमको आते थे हमारे पास। जी। हमारा बचपन था 10-11 साल की उम्र, हम लोगों को पिक्चर का बहुत शौक था। वो हजरत आके जपते रहते, हम लोग गैलरीन टाकिस में दारा सिंह की फिल्में चले आए थे। अच्छा वो आपस में से चलते रहा। बाद में फिर प्रोग्रामों में दोनों के जब साथ हो गया तो कुछ एक ऐसा सीजन भी चला, छोटा हनी बड़ा हनी बोल के। अच्छा बच्चे बजाते हैं गाते हैं बोल के बहुत लोग फेमस हो गए थे। फेमस हो गए थे। ऐसे ही चलता रहा। बाद मुन्ना साहब इधर चले गए, मैं इधर रह गया। जी। बस इतना है और क्या है। कुछ यादें आप और उनके ताल्लुक से क्या है बचपन के? अरे हम आपस में लड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे, अच्छा पिक्चर जाते थे, गाना बजाना करते थे। बाद में इतनी गहरी दोस्ती हो गई, अब क्या बताएं वो बस। नहीं, मैं खुद वहाँ पे प्रोग्राम में था जी। तो आपको वीडियो कॉल में देख के जो है उनके आंखों से आंसू निकले थे। जी। तो वो क्या ख़ास वजह होगी बोल के आपसे मैं। असल में क्या है, वो मेरी तबीयत एक 7 साल से बहुत ख़राब हो गई, अच्छा वरना मैं ज़्यादा एजुकेशन हासिल नहीं कर सका। मैं पढ़ाई की तरफ मेरी तवज्जो बहुत कम रही, बस तबला ही तबला हो गया। मेरा दोस्त जो है तबला बन गया। जी। अब इत्तेफाक से ऐसा हो गया, आमदनी के हिसाब से ज़रा क़व्वाली की तरफ ज़्यादा रुझू हो गया हम लोग। अच्छा अब वो क़व्वाली में क्या है, ज़रा घुंघरू बजाने का एक मौका आया, घुंघरू बन के। जी। अब वो बेंगलोर में कोई नहीं था, तो एक ऐसी जिद हो गई कि वो करना ही करना है। उसमें वो आगे बढ़ गया ज़्यादा। मेरा फिर कारोबार वही हो बन गया समझ लीजिए। अच्छा अच्छा। फिर उसी में मैं बिज़ी रहा। और मुन्ना के साथ में भी हम लोग बहुत प्रोग्राम बजाए, उनके बहुत सारे प्राइवेट रिकॉर्डिंग भी कैसेट बजाए। तकरीबन मेरे ख्याल से 60-70 कैसेट बजाए होंगे उनके साथ में। अच्छा। और इत्तेफाक से जो ए.आर. रहमान साहब के भी आज भी बुलाए थे वो, जी। एक कोई रिकॉर्डिंग करने का था, वो तो करके रख लेते हैं ना वो। अब वो किस में डालते हैं ये तो नहीं मालूम। अच्छा अच्छा। बस वो जो सुबह शाम जो रहते हैं, वो मेरी तबीयत ख़राब हुई तो उनको मेरे फ़ोटो देख के ज़रा, पुरानी फ़ोटो देख के, नई फ़ोटो देख के ज़रा उनको भी ये हो गया, मुझे भी पुराने दिन याद आ गए। मगर बड़ी खुशी की बात यह हुई कि बेंगलुरु में इतने आर्टिस्ट रहने के बावजूद, मुन्ना जो है मद्रास में चेन्नई में रहने के बावजूद, उम्मे हबीबा और ये दोनों जो मेरा इतना ख्याल किए हैं, इसका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। तो आपके ज़माने में, आपके दौर में जो है एक अच्छा स्टैंडर्ड होता था कि अगर आपके हुनर को भी जो है लोग जो है कदर करते थे। जी। लेकिन आज कल के नए लड़के जो है सीख रहे हैं, लेकिन इनके लिए क्या फ़ीचर होगा? आजकल के ये कव्वाली का में जो कहते हैं, हिंदू लोग बड़ा आगे हैं। जी। हमारी कौम में जो है बहुत कम हो गया है।
और इसमें तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या है, इल्म मौसीकी, जी, मौसीकी भी तालीम ज़रूरी है। और जब तक तबले हो या गाना हो, उसके नोटेशन या तबले के बोल नहीं सीख सकते तो वो उसे मंजिल नहीं मिलती। जी, अब मिसाल के तौर पे कोई रिकॉर्डिंग में बजाना है तो वो जो बताता है ना अरेंजर, उसको तबले के बोल के साथ कैच करना पड़ता। ये सुना हुआ काम जो है वहाँ काम नहीं आता। अच्छा इसमें थोड़ा बहुत तो हमारे उस्ताद की मेहरबानी है, जी। इसमें हम लोग ज़रा कामयाब रहे। अच्छा, आपके शागिर्द जो है अब बेंगलुरु के अंदर कोई शागिर्द बंद के हैं या कितने शागिर्द हैं आप? है 5-6 शागिर्द हैं। जी, एक राव बोल के था, वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में था, जी। उसने काफ़ी सीखा और दूसरों से भी बहुत तालीम हासिल की। हमारे बेंगलुरु में अमजद हुसैन बोल के सितार बजाते थे, जी, उनका लड़का असगर हुसैन बोल के, वो भी मेरा पहला शागिर्द रहा। अच्छा। बाद उसके बाद में वो रविंद्र ओगल के पास में भी तालीम हासिल की। अच्छा रनिंग में है वो, अच्छा। तरक्की में। तो आगे आप नए सीखने वालों को क्या मैसेज देंगे आपके तरफ से? सीखें, मेहनत करें। इसमें काम में जो है रियाज का काम है, जी, सीखने का बहुत आराम है, मगर मेहनत जो है इसके लिए कम से कम ये टुकड़ा बजाने के लिए 8-8 दिन लग जाते हैं, तब भी वो बन गई बात, नहीं तो नहीं। अच्छा अच्छा। ऐसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, आपसे मुलाकात कर बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपकी सेहत आमीन आमीन। जल्द से जल्द अच्छी हो। इसी की वजह से ज़रा परेशान हो गए, इसीलिए मुन्ना भाई रो दिए। अच्छा अच्छा, हाँ। शुक्रिया आपका। बस उनको शुक्रिया अदा करना। जी नाज़रीन, ये थे हनीफ साहब जो तबले में मशहूर। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह बने रहिए मेरे साथ न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। अगली मुलाकात में कोई ना कोई नई चेहरे के साथ फिर मुलाकात करेंगे।